Welcome students. In my last video, which was the part 1, you have seen that I have taken the two offsprings from the first generation and I have taken out all the probable gametes which can be made from that offspring. For example, I have taken this as male and I have taken this offspring as female. How many types of gametes this male can produce? 4. That will be capital T capital R, capital T small t capital R and small t small r. Same type of gametes will be produced from the female also. So this is the highest probable gametes which these two offspring can produce. To draw out the F2 generation in dihybrid, you have to draw the Punnett square. Now what we have to do, write these 4 gametes vertically and these 4 gametes horizontally, and after that do cross. Okay, so first of all you have to do cross from this gamete with this gamete. After this, do the cross with this gamete and second gamete. Third with this gamete and this gamete. Fourth with this gamete and this gamete. And slowly you have to fill all the boxes. And after that, you have to write the phenotype. For example, I am showing you the first line. Okay, so if you will do the cross between this and this, it will come capital T, capital T, capital R, capital R. Fine, which is tall, plant and round seed. So I have written here both genotype and phenotype. I have written both genotype and phenotype. Again, we will complete the line by like this. You have to multiply this capital T capital R with this capital T small r. So capital T, capital R, small r. This is tall plant and round seed. If only one capital letter also comes, then dominant character appears. Fine. Now cross this capital T R with this small t r. So it will come capital T, small t, capital R. So this is tall plant and round seed. Again cross with this and this. This will come capital T, small t, capital R, small r. This will come tall plant and round seed. So like this, fill all the boxes. I'll show you that this all boxes is filled. Then after that we will take out the phenotypic ratio. Okay. Now, as I have drawn all the table, you are able to see that when I have written capital T, capital R, then the dominant character has appeared. While on this case you will see that here it is capital T, capital R, small r. Still you are able to see that here the dominant characters are present. Okay, it's true that capital T will produce dominant character tall plant. But always remember, if the single alphabet of the dominant character also comes, then the dominant character appears. Like here, capital R, small r, then see the dominant character is appearing. Okay, that means dominant character can appear in 2 cases. Either both the letters are capital, then the dominant character appears, and if single letter is also in capital, then also dominant character appears. Recessive character only appears in one case, when both the alphabets are in lower case. Okay, कहने का मतलब है अगर बड़ा टी आया तो डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल आ जाएगा. अगर बड़ा टी छोटा टी आया तो भी डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल आ जाएगा. और अगर छोटा टी आया
तो जाकर वो ड्वार्फ होगा। ठीक है, मतलब डोमिनेंट जो है वो दो केसेस से हो सकता है और रिसेसिव जो है उसका एक ही केस हो सकता है। ठीक है, नाउ सो यू आर एबल टू सी हियर आल्सो कैपिटल T स्मॉल t एंड द टॉल प्लांट इज कमिंग, है ना। So here you are able to see that I have filled all the columns by doing cross. Okay, आप कोई भी देख लीजिए, जैसे आप इस स्मॉल t कैपिटल R को लीजिए, इसको पहले मैंने कैपिटल T कैपिटल R से किया तो देखिए क्या आया, है ना। फिर इसी को इससे किया, फिर इसी को इससे किया, फिर इसी को मैंने इस चौथे वाले से किया। तो इस तरह से आप पूरा टेबल ड्रॉ कर लीजिए। फिर आप सबका कैरेक्टर लिख लीजिए देखकर, अगर दोनों अल्फाबेट्स बड़े हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर लिखिएगा, अगर दोनों अल्फाबेट छोटे हैं तो रिसेसिव कैरेक्टर लिखिएगा, अगर दोनों अल्फाबेट में एक बड़ा एक छोटा है तब भी आप डोमिनेंट कैरेक्टर लिखिएगा। अब बात है कि डोमिनेंट कैरेक्टर आप कैसे डिसाइड कीजिएगा, तो याद रखिए जो भी कैरेक्टर आपका F1 में आया वही डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। और ऐसे भी मैंने आप लोगों को एक टेबल दे रखा है और उस टेबल में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों लिख रखा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा टेबल भर दिया और सारे के सारे का मैंने फिनोटाइप भी लिख दिया। अब आइए, अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, तो अब नेक्स्ट आपको करना है कि इसमें जो कैरेक्टर है उसको आप पहले एक जगह लिख लीजिए और वो कैरेक्टर कितनी बार आया है इसको काउंट कीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखिएगा, सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर आता है, टॉल प्लांट राउंड सीड, लिख दीजिए वहां पर आप टॉल प्लांट राउंड सीड लिख दिया मैंने। अब काउंट कीजिए कितनी बार आया है ये, तो ये आया है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ये 9 बार आया है, तो आप यहां पर 9 लिख दीजिए। ठीक है, फिर सेकंड कैरेक्टर आप ढूंढिए, तो सेकंड कैरेक्टर आता है ये देखिए, अगला सेकंड नया कैरेक्टर टॉल प्लांट रिंकल सीड, तो मैंने यहाँ टॉल प्लांट रिंकल सीड पहले से लिख रखा है। अब काउंट करते हैं टॉल प्लांट रिंकल सीड कितना आया है, तो 1 2 3, टोटल 3 बार आया है ये, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अब क्या आता है, नया कैरेक्टर ढूंढिए, तो नया कैरेक्टर आता है ड्वार्फ प्लांट राउंड सीड, देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ड्वार्फ प्लांट राउंड सीड, आपको यहीं से ढूंढना है ना, यहीं से ढूंढना है। तो मैंने ढूंढ लिया ड्वार्फ प्लांट राउंड सीड, ये कितनी बार आया है, तो 1 2 3, तो ये 3 बार आया है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। अब कौन सा कैरेक्टर बचा, अब यही बचा है ना, ड्वार्फ प्लांट रिंकल सीड, तो मैंने यहाँ लिख रखा है ये कितनी बार आया है, तो ये सिर्फ एक ही बार आया है, वंस आया है, तो 1। तो इसका मतलब F2 का फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है, F2 का फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है डाइहाइब्रिड में, ठीक है, याद रखिएगा डाइहाइब्रिड में वो होता है 9:3:3:1, है ना, ये होता है। तो आपको डाइहाइब्रिड में F2 का सिर्फ फिनोटाइप ही पूछा जाता है, जीनोटाइप नहीं पूछा जाता है, तो इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो तक बता दिया। ठीक है, सो इफ यू हैव स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम देन द प्रॉब्लम इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू योर नॉट प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर, है ना, आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपको कितना बढ़िया से आ जाएगा ये चीज। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको सैंपल क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, आप क्रॉस बनाइए एक ऐसे पौधे का जो कि टॉल है ना, और उसका वायलेट फ्लावर है। ठीक है, ये क्या है, टॉल प्लांट, और ये क्या है, वायलेट फ्लावर, टॉल प्लांट वायलेट फ्लावर का आप क्रॉस कीजिए ड्वार्फ प्लांट एंड वाइट फ्लावर। इसको किससे क्रॉस कीजिए, ड्वार्फ प्लांट एंड वायलेट फ्लावर। ठीक है, ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस का है, ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना, इस वीडियो को देखिए, जो मैंने वीडियो बना रखा है
उससे इसको कंपेयर कीजिए और फिर उसके बाद ये आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए. इफ यू आर एबल टू डू सो, इट्स वेरी गुड. इफ स्टिल यू फेल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.